नमस्कार दोस्तों, टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मैं अरुण आहूजा आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, हमारे टैक्स गुरु, आज के बजट के बारे में एक बेसिक अपनी रिएक्शन देंगे कि उनके हिसाब से क्या चीज़ मिस है और क्या चीज़ एक अच्छी चीज़ हुई है इस बजट में, जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो बेसिक्स के बारे में, बाकी अभी तो डिटेल सारी आ रही हैं और अभी तो बजट्स वगैरह भी पूरी डिटेल सब तो एक एक लाइन का बीच में इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो Sir, I remember whenever I had gone to these days in the past to various branches, I told them, please look here, short-term capital gain will be raised from 15% to 20% in case of 111A. And I also told them that long-term capital gain will be raised from 10 to 15. That 10 to 15 is not there, 10 to 12.5% is there. But it has been raised. It has been raised. Whereas short-term capital gain has been raised to 20%. So many stock exchange was affected to a great extent. But that is, I told them, these days everybody is making money, so nobody will mind paying tax. But very good, they have borrowed at 12.5%. But at the same time, long-term capital gain for all other assets has also been brought down to 12.5%. But 48 indexation not allowed. So there will be no indexation at all. Since there is no indexation, some will be benefited, some will be put to a great loss. But those who have taken a property before 2001, at that time the property price was not much. Or even if you take the value in 2001, today you multiply it by 3.63, it is not going to be a big amount. They will be all making money in that. But in the case of certain asset where there used to be loss because of indexation, now the question is they will have to pay tax at the rate of 12.5%. So that point is also important, They have to pay tax at 12% without no indexation at all. Mind it, unlisted debentures and shares, the tax is 20%. Is 20%. New section inserted in the new section 50AA. So there it is 20%, whether short or long. Question does not arise, it is 20%. That manual should also be noted by it. And then again the problem is what I am trying to explain. 112A is okay, 10 to 12.5%. The benefit which they have given is only 25,000 rupees. Only 25,000 rupees in case of that. So my point is 242A में एक advantage दे दिया. अब दो ही रह गए, 12 months, 24 months. No question of 36 months. 12, 24. Earlier 24 was unlisted share and property. Now for everything other than listed securities, even unit has come there. It is 24 months. So only 12, 24, 12, 24. So that is better. But at the same time, you have noticed that the liability of tax in certain cases may be more because they were not paying tax, or after indexation, practically capital gain was less. Now since there is no indexation, please, capital gain will be more. And if the capital gain is more, 54 will also be more. That point is also to be remembered. Am I right or wrong? Earlier, you could take the benefit of capital indexation and take that home. Now you can't take that home. You have to invest the capital gain. obviously, What difference, sir? Or you have to invest the capital gain. So 54F and 54, what is the difference now? So my point is, capital gain will have to be invested entire amount, and if the capital gain is more, you are going to lose. Yeah. You will not get the benefit. 54 12.5 मिल रहा है, 54, दो 12.5 छोड़ दो, दो। 12.5 दो छोड़ दो. तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है. उस वक्त लोगों को ना कंपैरिजन करना पड़ता था, कमर्शियल और रेजिडेंशियल. अब कोई कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइंट डाला 115 QA हटा दिया. मैं बहुत बार कह रहा था ये मिसयूज हो रहा है. People were not distributing dividend. They were saving tax because the tax was 20% plus 12% plus surcharge. That too was paid by company. सर, पर इतना बुरा थोड़ी ना करना था.
कि आप रिसीट को हमारी कॉस्ट को देख ही नहीं रहे। कॉस्ट बहुत देखता रहा हूँ कॉस्ट, सर वो 12.5% के अगेंस्ट दे रहे हो ना लॉन्ग टर्म गेन में। कॉस्ट को देख रहा हूँ, जो मेरी कॉस्ट होगी, कंसीडरेशन प्राइस निल, इनका एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, वो लॉस आएगा। नहीं लॉस तो कैपिटल तो पहले भी तो लॉस ही था सर, वहाँ 12.5% था, सर, यहाँ वो वाला डिविडेंड, ये जो प्लानिंग खत्म हो गई डिविडेंड की। डिविडेंड तो आपको टैक्स लगेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। 57 में लिख दिया पूरा डिविडेंड, और 194 में टीडीएस भी कटेगा। टीडीएस ही कटेगा यार सब कुछ हो गया, वो तो खत्म हो गई प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग जीरो हो गई। बायबैक ही खत्म हो गया। बायबैक ही खत्म हो 9 गया। महीने बाद दोबारा कर सकते थे। सेक्शन ही सर। नहीं अभी तो कर सकते हैं ना 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक तो है। अच्छा सर, कैपिटल गेन वाला तो आज से लागू है ना वो? कौन सा? हाँ 12%। 23 जुलाई हाँ। पिछड़ा खत्म, 23 जुलाई। तो ये कैपिटल गेन का हुआ, ये 115 क्यूए का हुआ, उसके साथ 94 194 भी हो गया, आपने नोटिस कर लिया। लेकिन नोटिस कीजिए जो सर्च केसेस है, जो 108% और 138% भी हो सकते थे, अब 90 में। 90 में। लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि सरचार्ज अभी नहीं लगाया, छोड़ ही नहीं सकते, लेटर ऑन करेंगे। 60% 60 प्लस 30% पेनल्टी, 50% पेनल्टी, 90 हो गया 90 हो गया सर, 108 से 90। और सरचार्ज भी लगेगा। अगर रिटर्न में दिखा सरचार्ज अभी तक लिखा नहीं करेंगे, सर अभी नहीं लगाया। अभी नहीं लगाया, लेकिन लगाएंगे। ये 113 सेक्शन वाला वही तो है। 113 सेक्शन में जो 115 बीसी में 60% है, वो 60 है। बाकी सब मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। रिटर्न अगर दिखा दो तो पेनल्टी। और वो 148 का वो जरूर वो तो किया है, ठीक 6 है। साल, वो ठीक और वो 5 साल, वो 5 साल हो गया ना अब। वो तो कल वो ये काफी चेंज कर दिया दोबारा, 147 148 49 साल तो चेंज कर दिया। और नए एक्ट के बारे में बताओ। आपका नया एक्ट। मैंने बोला था ओल्ड रिजीम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं होने का कारण अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन ओल्ड रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं दिया किसी तरह का, इवन स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया। स्टैंडर्ड वो भी नहीं दिया, इसी के लिए ना, इसी के लिए सिर्फ 17,500 रुपए का बेनिफिट हुआ मुझे। सर नए का क्या करें? देखिए न्यू रिजीम में उन्होंने करना ही करना है, ओल्ड रिजीम को खत्म कर नहीं सकते, बिकॉज 1017 सेक्शन तंग कर रहा है। डेली अलाउंस, constituency allowance of MP and MLA are exempt under old regime. They are not exempt under new regime. वो करेंगे ही नहीं, वो हटा नहीं सकते। नए एक्ट में ही करेंगे, नए एक्ट में। तो न्यू रिजीम ही रहा, ओल्ड रिजीम का कोई बेनिफिट नहीं दिया, कोई 1.5 लाख 1 लाख कुछ नहीं बढ़ाया, और ना बढ़ाना था, वो भी पहले बता दूं। और बार कहा था 1023C को मर्ज कर दो, कर दिया। तो पिछली बार करना था, माने नहीं थे, इस बार कर दिया। बात हमारी मानते हैं, लेकिन देर में मानते हैं। अब वो क्या है, 1023C हटाया नहीं है। नो, आपकी अप्रूवल 1 अक्टूबर 2024 के बाद होगी नहीं, तो अपने आप चलेंगे। एग्जिस्टिंग वाले चलते रहेंगे, एग्जिस्टिंग वाले चलते रहेंगे। वो 5 साल ही तो चलेंगे, बाद में तो आ ही जाने हैं। तब तक नया एक्ट ही आ जाएगा। नहीं, नया पुराना भी है तो भी तो कहीं तो पिछले वाले खत्म हो रहे हैं। सर ये आएगा एक्ट? सर 2 ले आएगा, छोड़ दो, कुछ नहीं आता इनको, जब ये होता कह देते हैं। तो ये पहला बता दिया कि ये भी एक आया, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा 14, 17, 47, 13 को चेंज किया है। वो जो गिफ्ट है, विल है, इरिवोकेबल ट्रस्ट है, सिर्फ इंडिविजुअल एच्योर कर सकेगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर माना जाएगा। ये भी बड़ी चीज़ें सोच के करते हैं। कंपनी भी मानते थे कि कंपनी गिफ्ट कर सकती थी, ट्रस्ट भी गिफ्ट कर सकता था, हट गया, वो भी हटा दिया आपको। तो ये कैपिटल गेन में तो 2 ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, 23 जुलाई के पहले वो करो, 23 जुलाई के बाद वो करो, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? दावे में भी दिक्कत है। ग्रैंडफादर वगैरह सब खत्म। सर ग्रैंड नहीं, मतलब जो 23 जुलाई से पहले बेच रखा है उसका 12.5%, उसका निकालना 10%। जो 23 जुलाई और उसके बाद बेचोगे उसका निकालोगे 20%। कैसे करोगे? साफ सवाल कर बताओगे, क्रिकेटिंग में पॉइंट। तो ये उसका भी आ गया, और आपका वो भी क्लियर कर दिया
letting of residential property हाँ, will always be covered up. कमाल है। ये जो बिल्डर्स वगैरह अपने फ्लैट स्टॉक सब में दिखाते थे खत्म, ना, सब खत्म। इसमें जो अपने बिजनेस से रिलेटेड कमर्शियल कर रहे हैं, जैसे कुछ हॉस्पिटल वगैरह रेंट करते हैं, वो रहेगा बिजनेस में, बाकी नहीं। बाकी खत्म हो गए। शिप फर्म का अब बड़ा क्लियर हो गया कि पार्टनर्स आर मे नॉट बी एम्प्लॉयड, बट नाउ 194T आपको TDS काटना पड़ेगा। TDS काट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू आ गया ना, important issue आ बिकॉज पहले तो कहते थे दे आर नॉट एम्प्लॉय, व्हाई शुड देयर बी। नाउ तो TDS काटना पड़ेगा, और आपको जब क्वांटिफाई करना है तो हर महीने सैलरी दे रही तो हर महीने TDS काटना पड़ेगा, पेड और क्रेडिटेड व्हिचएवर इज, और इंटरेस्ट आप साल पे आते हो। और होता क्या था, लोग ड्राइंग करते रहते थे साल के एंड में सैलरी करके। आप कैसे करोगे? आपके पहले प्रॉफिट पड़ा होगा तो निकाल लेना, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं। तो ये भाई 194T भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये भी नोट कर लीजिए बस। और क्या, Thank थैंक you, यू thank you, थैंक thank यू you. वेरी मच।